nations, that my salvation may reach to the end of the earth. I welcome to you all to this morning service, the Epiphany Sunday. Let us join together in the opening hymn.
Spirit be with you all. Let us join together in section 4 and 5. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। The epiphany of our Lord Jesus Christ, the coming of the wise men from the east, is a sign that Christ is for all the peoples of the earth. हम दुआ में शरीक होंगे। Let us join together in the collect of the day. Eternal God, who by the leading of a star brought eastern sages to the feet of your Son, grant that all the nations of the world may be drawn to his light and finally attain to the vision of your glorious Godhead. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. Today's reading has been taken from the book of Isaiah, chapter 60, verses 1 to 5. Arise, Jerusalem, and shine like the sun. The glory of the Lord is shining on you. Other nations will be covered by darkness, but on you the light of the Lord will shine. The brightness of his presence will be with you. Nations will drawn to your light, and kings to the dawning of your new day. Look around you and see what is happening. Your people are gathering to come home. Your son will come from far away. Your daughters will be carried like children. You will see this and will be filled with joy. You will trample with excitement. The wealth of the nation will be brought to you. Across the sea there is rich will come. This is the word of the Lord. आज का पाठ जो लिया गया है भजन संहिता उसका 67 1 से लेके 7 पद तक। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के सब लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि में अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। Third reading is taken from Paul's letter to the Ephesians chapter 3 verses 1 to 12. Chapter 3 verses 1 to 12. For this reason I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles, pray to God,
Surely you have heard that the God in His grace has given me this work to do for your good. God revealed His secret plan and made it known to me. I have written briefly about this, and if you will read what I have written, you can learn about my understanding of the secret of Christ. In past times, mankind was not told this secret, but God has revealed it now by the Spirit to His holy apostles and prophets. The secret is that by means of the gospel, the Gentiles have a part with the Jews in God's blessings. They are members of the same body and share in the promise that God made through Jesus Christ. I was made a servant of the gospel by God's special gift, which He gave me through the working of His power. I am less than the least of all God's people, yet God gave me this privilege of taking to the Gentiles the good news about the infinite riches of Christ, and of making all people see how God's secret plan is to be put into effect. God, who is the creator of all things, keeps His secret hidden through all the past ages, in order that the present time, by means of the church, the angelic rulers and powers in the heavenly world, might learn of His wisdom in all its different forms. God did this according to His eternal purpose, which He achieved through Jesus Christ, our Lord. In order with Christ through our faith in Him, we have the boldness to go into God's presence with all confidence. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Hear the gospel of the Lord Jesus Christ, the gospel according to Matthew, chapter 2, verses 1 following. खुदावंद यीशु मसीह की इंजील सुनो। इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से यूं शुरू होती है। हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यीशु के पास आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुन के हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से, सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और उनके मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये मसीह की इंजील है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 3 खास बातें जुड़ी हुई हैं। पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, फरिश्ते चरवाहों को शुभ संदेश सुनाने पहुंच गए, और चरवाहे चरनी तक पहुंच
8वें दिन खुदा यीशु मसीह का खतना हुआ, उसका नाम रखा गया। और 13वें दिन मजूसी बैतलहम में उस घर में पहुंचे जहां पर मरियम और यूसुफ मौजूद थे। आज जब मजूसियों का दिन हम मना रहे हैं तो इस बात का निशान है कि खुदा यीशु मसीह कुल कायनात का खुदा है। आज का मुद्दा है खुदा यीशु मसीह का गैर कौमों पर जाहिर होना। द एपिफनी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। Father, fill us with your spirit so that we may gain your understanding that the Messiah came for the salvation of the entire creation. To the glory of your name we pray. Amen. पहली चीज हम देखते हैं कि मजूसियों का आना अचानक से नहीं हुआ था, ये नबूवतें हुई थी पुराने अहदनामे में। The visit of the Magi makes the nativity story even more interesting. खुदावन ने ये योजना बनाई थी और पुराने अहदनामे में उसकी नबूवत करी। ज़बूर भजन साम 72 वर्स 9 and 10 वहां लिखा है कि डेजर्ट की ट्राइब्स खुदावन यीशु मसीह के सामने सजदा करेंगे। तारशीश और दूर दूर के देशों के राजा खुदावन के पास सजदा करने के लिए आएंगे। शेबा और सेबा के राजा खुदावन के लिए तोहफे लेकर आएंगे और कुल कायनात के बादशाह खुदावन के सामने सजदा करें और उसकी खिदमत करें। मकसद ये था कि खुदावन यीशु मसीह को पूरी कायनात का नजात दहिंदा करके पेश किया जाए। Geographical boundaries and religious preferences do not alienate creation from the Creator. The visit of the Magi signifies the universal plan of God that He loves all. अब सवाल यह उठता है कि मजूसी लोग कौन थे? दूसरा नुक्ता, second point. The earliest known use of the word Magi is in the trilingual inscription written by Darius the Great, known as the Behistun inscription. Magi, Magus, Najumi खानदानी याजक होते थे, काहिन थे, सोराष्ट्रियन प्रीस्ट थे, मीडिया और पर्शिया के, और इनके पास कुदरती ताकतें हुआ करती थी, supernatural powers. Pervasive throughout the Eastern Mediterranean and Western Asia until late antiquity and beyond, Magus was the older word for a practitioner of magic, to include astronomy, astrology, alchemy, and all other forms of esoteric knowledge. यूनानी इनको जादूगर भी करके समझते थे। पुराने अहदनामे में मैगोस शब्द का इस्तेमाल करा गया, नए अहदनामे में भी, और आमतौर पर इसको मैजिशियन या सॉर्सरर करके कहा जाता है, यानी कि फॉर्च्यून टेलर भी उसको कह देते हैं, जो भविष्यवाणी आप करता है, मे बी इल्यूजनिस्ट। And this is how it is translated in all its occurrences in OT and NT, except for the Gospel of Matthew, where depending on translation, it is rendered wise men or left untranslated as Magi. However, early church fathers such as Saint Justin, Origen, Saint Augustine, and Saint Jerome did not make an exception for the gospel and translated the word in its ordinary sense, that is the magician. तो ये जो मजूसी थे, नजूमी थे, इनको हम कह सकते हैं कि शायद ये जादूगर थे, रूहों से निस्बत रखने वाले लोग थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, एल्केमिस्ट थे, या राजा के काउंसलर्स भी हो सकते हैं, या इनके पास ये सारी ज्ञान था, इन सारी बातों का भी ज्ञान हो सकता है। अब कहानी क्या थी कि मत्ती 2:1 से लेकर 2:12 के अंदर हमें देखने को मिलती है कि
मजाए खुदा यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने एक तारा देख लिया था यहूदा में, और उसको देखते देखते वो पहले हेरोद के महल तक पहुंच जाते हैं, वहां से फिर चरनी की तरफ पहुंच जाते हैं। हेरोद कहता है कि जब तुम देखो उसको, मुझे तो नहीं पता कि कोई पैदा हुआ है, मगर शास्त्रों में लिखा है कि कोई पैदा होगा, जब तुम उसको सजदा कर लो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी जाकर उसको सजदा कर लूं। मगर उन्हें ख्वाब में एक सरदूत कहता है, फरिश्ता कहता है कि तुम वापस वहां तक ना जाना, क्योंकि वो शायद मार देगा बच्चे को, तुम जो है उसके पास वापस लौट के ना जाना। तो मजूसी लोग उसके पास जाते नहीं हैं और दूसरे रास्ते से वो अपने अपने मुल्क को चले जाते हैं। वन ऑफ द नॉन कैनोनिकल क्रिश्चियन सोर्सेज, द सीरियाक इन्फेंसी गॉस्पेल provides in its 3rd chapter a story of the wise men of the east, which is similar to much of the story in Matthew. और ये अकाउंट के अंदर इस लेख में ज़ोरादश्त, जो कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म का फाउंडर था, वो नबूवत करता है मजूसियों को कि जाओ और बालक यीशु को सजदा करो। Though one may doubt the authenticity of this story, but one thing is sure, उन्होंने कोई तारा तो जरूर देखा था, और इसका मतलब था कि शायद वो एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुकात रखते थे। These wise men were motivated by some supernatural force or knowledge to witness the Savior of the world and to pay homage to Him. He is above every power. दुनिया की तमाम ताकतें, चाहे हाल की हो या इस्तकबाल की, एक ताकत की तरफ इशारा करती हैं, और वो ताकत है खुदावंद यीशु मसीह। इसी साथ चौथे नुक्ते पर पहुंचते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टार। वो तारा था, उसकी क्या अहमियत थी? उन्होंने सिर्फ तारा ही क्यों देखा, कुछ और चीज क्यों नहीं देखी? यशाया 60 1 और 2 आयतों के अंदर लिखा है, उठ और नूरानी हो, तेरा नूर आ गया है और खुदा का नूर तुझ पर चमक रहा है। See, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and His glory appears over you. Quite interestingly, the light was first shown among the Gentiles, opening a new chapter in the salvation history of the world by covering the entire creation under the grace of God. जो तारा उन्होंने देखा था, it corresponds even to the Star of David. जो दाऊद का तारा था, उसमें 2 त्रिकोण हैं और दोनों एक दूसरे को के साथ बीच में से जुड़े हुए हैं। एक त्रिकोण ऊपर आसमान में यानी खुदा की तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरा त्रिकोण जो है वो इंसान की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ये दाऊद का जो तारा है वो इंसान और खुदा का मेल करा रहा है। Isaiah chapter 9 verse 2 prophesies about the Messiah, that the people walking in darkness have seen the great light, on those living in the land of deep darkness the light has dawned. और ये वही नूर है जिसे चमकने से अंधकार की शक्तियां भाग गई, और जिस तरह से इस तारे की एक नोक जो है खुदा की तरफ इशारा कर रही है, और दूसरी नोक इंसान की तरफ इशारा कर रही है। इस बात का निशान है कि खुदावंद यीशु मसीह वो तारा है, वो नूर है जिसने खुदा और कायनात का मेल करा दिया है, और इस कायनात में तो ये मजूसी भी मौजूद थे। Revelation chapter 22 verse 16 calls the Lord Jesus Christ the bright morning star. God promised in Numbers 24:17, a star shall come forth from Jacob. याकूब से एक तारा निकलेगा, और खुदा यीशु मसीह वो तारा है। Magi following the star is a symbolism that the world soon is going to follow the great light of God, that is the Lord Jesus Christ. उन्होंने तारा पहली बार कब देखा था? They saw the star presumably
2 years back. The primary reason why some hold the star appear 2 full years before the nativity is based on Matthew chapter 2 verse 7, जहां पर हेरोद तहकीकात करता है कि उन्होंने कब तारा देखा और उसकी तहकीकात के मद्देनजर रखते हुए वो 2 साल से छोटे लड़कों को हलाक करने का हुक्म जारी कर देता, फरमान जारी कर देता है। तो जाहिर सी बात है शायद वो तारा 2 साल पहले निकला था। जीसस हाउएवर, दूसरा एक और ओपिनियन है, Jesus was being circumcised on the 8th day and presented at the temple on the 40th day. This leads us to speculate that it is quite possible that the slaughtering of the innocent did not occur until nearly 2 years after the nativity. हेरोद ने एकदम से खबर मिलते के साथ तो ये फरमान जारी नहीं करा होगा कि 2 साल से छोटे लड़कों को मार दे, मगर जो भी बात हो, इस डिस्कशन से ये तो हम कह नहीं सकते कि तारा कब दिखा था, मगर ये जरूरी बात है कि वो जो तारा उनको दिखा था, उस तारे को देख they made long journeys and but possibly they were not from the same countries. पैलेस्टाइन में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है, क्योंकि पथरीला और रेतीला इलाका है, और ये मजूसी जो थे जानवरों के ऊपर चढ़ के आए थे, तो जाहिर सी बात है बड़ी कष्ट हुआ होगा इनको। They endured this hardship just to present gifts and to pay homage to the Lord Jesus Christ. They may not have understood the baby Jesus as we understand him today, मगर वो ये तो जानते थे कि बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई। वो खुदा यीशु मसीह से कुछ उम्मीद लेकर नहीं आए थे, वो तो सिर्फ उसको सजदा करने के लिए आए थे। क्या जज्बात थे उनके! यह हमारे लिए चुनौती है, क्या हम अपने नजात दहिंदा से मिलना चाहते हैं? Are we keen to meet him every week on Sundays, every morning, every hour, every second, knowing fully well that he is our creator, redeemer and our God? We need to have the desire to meet him daily and abide in him always, for that will make us acceptable to him when he returns the second time. अभी कितने थे गिनती में? ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी में, स्पेशली सीरियाक चर्चेस, ये जो मजाए हैं वो कहते हैं कि 12 नजूमी थे। Their identification as kings in later Christian writings is probably linked to Isaiah chapter 60 verses 1 to 6, जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, कि वहां लिखा था कि राजा महाराजा खुदा के सामने जो है गोल्ड और फ्रैंकिंसेंस लेकर आएंगे। भजन 72:11 के अंदर भी ये बात लिखी है, May all kings fall down before him. However, the number is quite uncertain. Careful observation reveals that it is not the number of believers that God focuses on, but he focuses on our hearts. The intentions with which we approach the Creator is more important than our numbers or frequency of our visits. मजाए जो थे वे हेरोद के पैलेस में पहले क्यों गए थे? 7वां सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है। चाहे हम मजूसी को कुछ भी बोले, मगर एक बात तो पक्की थी कि इन आलिम लोगों के पास कुछ ना कुछ तो दैवीय शक्तियां थी, कुछ ना कुछ तो ज्ञान था, कि वो पहचान गए कि चरनी में जो बच्चा पड़ा है आम बच्चा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और जो तोहफे वो लाए थे वो भी मामूली नहीं थे। तो इसलिए जो शख्सियत पैदा होने वाली थी उनके हिसाब से कोई मामूली जगह पे नहीं, ये सिर्फ राजा के महल में ही पैदा हो सकता है। They never speculated that a man of that aura could be born in a humble manger. Star would have taken the Magi directly to the manger.
मगर वो पहले उनको हेरोद के पैलेस पे ले गया। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 15, ये पूरी होनी जरूरी थी। A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping. Rachel, weeping for her children, refused to be comforted because they are no more. Had not the Herod learned about his birth, he would not have ordered the massacre, and the said prophecy would not have been fulfilled. जब खुदा का काम हो रहा होता है तो खुदावंद छोटी से छोटी डिटेल को भी बहुत अहमियत देता है। The disturbance at the palace of Herod signified the disturbance in the kingdom of Satan. The disturbed Herod signified disturbed yet helpless Satan. खुदा के बेटे ने जमीन और आसमान की ताकतें हिला दी। मामूली सी चरनी became significant and popular, मशहूर हो गई थी और अहम हो गई थी क्योंकि जलाल का खुदा उसके अंदर पैदा हुआ था। अब नजूमी लोग जो तोहफे लेकर आए थे, इनका क्या मतलब था? 8वां सवाल, यशायाह 60 और 6 आयतों को, 6 आयत में जो नबूवत है उसको पूरा करने के लिए जरूरी था कि ये उन तोहफों को लाए। पहला तोहफा गोल्ड, सोना, खुदावंद की शान को दिखाता है, रॉयल्टी ऑफ द मसाया। It represents eternity, love, purity and kinship. In 1 Kings chapter 6 verses 20 to 22, पहला राजा 6:20-22, जो मोस्ट होली प्लेस थी और जो ऑल्टर था उसके ऊपर गोल्ड की परत होती थी, और ये गोल्ड इट पॉइंट्स टुवर्ड द डीटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दूसरा तोहफा फ्रैंकिंसेंस, लोबान, इट इज अ सिंबल ऑफ priestly role and deity of the Lord Jesus Christ. Frankincense is an aromatic gum resin used widely in worship by different religions even today. और ये पेड़ की छाल को छील कर बनाया जाता है, कुछ बूंदे से आ जाती है, मोतियां से आ जाती हैं, उनको प्रोसेस करा जाता है, उनको सुखाया जाता है और उनको जब जलाते हैं तो बहुत खूबसूरत खुशबू, बड़ी प्यारी मीठी खुशबू निकलती है। और ये टैबरनेकल, मिलाप वाले तंबू और टेंपल वर्शिप में इस्तेमाल करा जाता था। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 30 वहां पर लिखा हुआ है 34वीं आयत के अंदर प्योर फ्रैंकिंसेंस का जिक्र है। उन मसालों में खास तरह के मसाले जो कि जलाए जाते थे ताकि एक धूप उड़े और खुदावंद तक पहुंचे वो महक। A speculative parallel can be drawn between this and Jesus' life as pure and holy offering to the Lord. Quite interestingly, on the cross at Calvary, Jesus was the perfect sacrifice offered by the great high priest, that is, he himself, and offered to God, whose second person is none other than the Lord Jesus Christ. Frankincense signifies कि खुदावंद यीशु मसीह खुद ही काहिन है, वो खुद ही कुर्बानी है और खुद ही खुदा है। He himself is the priest, the sacrifice and God. तीसरा तोहफा जो नजूमी लाए थे वो मुर था। मर, a prefiguring of his death and embalming. मर एक मसाला है जो कि पेड़ में से निकलता है और फ्रैंकिंसेंस, लोबान की तरह ये जलाया भी जाता है। और जो निर्गमन
30 था, उसके अंदर एनॉइंटिंग ऑयल का जो मसाला होता था उसके अंदर ये डलता था। ये दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल आता था, और जब कोई लाश होती थी उसको प्रिजर्व करने के लिए, ममी बनाने के लिए इसको लगाया जाता था। जब वो औरतें कब्र पर खुदावन यीशु मसीह के लोथ जिस्म के ऊपर, डेड बॉडी पर, मिट्टी पर जब वो मसाले लगाने गई थी तो उसके अंदर मर भी एक मसाला था। तो इट सिग्निफाइड द डेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड एट द सेम टाइम द हीलिंग, द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हीलिंग दैट ही वुड ब्रिंग। The gifts the Magi brought were not simply expensive and rare, but each had a symbolic meaning. नौवा और आखिरी नुक्ता कि मरियम और यूसुफ ने इन तोहफों से करा क्या था। मत्ती 2:13 के अंदर लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ को एक संदेश दे गया कि उन्हें इजिप्ट मिस्र में जाना है, और ये करीबन 100 मील लंबी सफर था, और ये गरीब परिवार के लिए मुमकिन नहीं था कि उसका खर्च उठा सके। तो हम सोच सकते हैं कि महंगे तोहफे उनके सफर के काम आए होंगे, कि उन्होंने उनको बेचकर अपने सफर का जो है खर्चा चुकाया होगा। अजीजों, इस बात की तरफ इशारा है कि अगर खुदा ने आपको किसी खास काम के लिए चुन लिया है तो खुदा आपके लिए जरिया भी बनाएगा। He promises us that he will never leave us nor forsake us. खुदावन अपने बेटे को कैसा अकेला छोड़ देता। मकसद था कि दुनिया को बचाए। उसके अंदर पाक तसलीस का होना जरूरी था, और जरूरी था कि पाक तसलीस खुदा की पैदाइश में, खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश में जो भी कमी घटी हो पूरी करे। इन द ओल्ड टेस्टमेंट हम देखते हैं, पुराने अहदनामे में मन्ना और बटेर बरसा दी थी खुदा ने, क्योंकि खुदा के लिए खुदा के लोगों के लिए खुदावन एक मुल्क बनाने जा रहा था। अब खुदावन यीशु मसीह पैदा हो गया कि उस खुदा के लिए परिस्तारों का, वर्शिपर्स का एक मुल्क बना सके। खुदा ने जरूरतें तो पूरी करनी ही थी। वो हर एक की हौसला अफजाई करता है, जिसको वो चुन लेता है अपने काम के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करता है। आज हम एपिफनी संडे मना रहे हैं। एपिफनी, द कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड as a moment when you suddenly feel that you understand or suddenly become conscious of something that is very important to you. And I'm quoting this verbatim. The Epiphany Sunday reveals God's plan of salvation for the Gentiles. The devotion of the wise men was evident from the long journey that they made in the extreme climate of Palestine to pay homage to the king. Epiphany Sunday खुदा के मिशन में नए आयाम खोल देता है। This gives the people of other faiths the opportunity to acknowledge the lordship of the Messiah and the people of God, an accommodative and tolerant spirit towards others. God cannot be limited by religions. वो तो कायनात का खुदा है, खालिक है, and he loves and blesses all. खुदा यीशु मसीह ने एक बार कहा, I praise you Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. When his own people did not want to welcome and understand him, when the authorities, both political and religious, were against him, the Gentiles believed in him, came to worship him, and understood his real character. कायनात खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक रही थी उन नजूमियों की शक्ल में। The kingdom of God is not away from anyone who believes that faith in the Son of God will lead us to eternal life. कैसी अद्भुत बात थी। मरियम और यूसुफ बहुत ही हलीम परिवार से थे, घरानों से थे, कोई उनका बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था, मगर उनके जो बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पूरी कुल कायनात सजदा कर रही है। वो क्या सोच रहे होंगे।
चरनी में कोई आम शख्सियत नहीं, पाक तसलीस की दूसरी शख्सियत ने इंसानी जिस्म लिया था। Epiphany marks the universal lordship of the Messiah. This Christmas, let us share the good news with those of other faiths that Christmas is not simply merrymaking, but it is welcoming the Savior of the creation to our hearts. Let us spread the message that God is accessible to those who come to Him in faith. आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो ना सिर्फ यहूदियों का नजात दहिंदा बल्कि कुल कायनात के लिए नजात है। जिस तरह से मजूसी खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचे और चरनी में वो माहौल बन गया था जहां उन्होंने इबादत करी उस खुदा की। होने दिया बाप आसमानी, हमारे दिलों में भी खुदा के लिए वो इज्जत हो कि हमारे घर भी चरनी हो जाए, और जिस तरह से मजूसी पूरे मन से उसको सिजदा करे, होने दिया खुदाबंद आपके लोगों के अंदर भी वो जोश हो कि वो उस कायनात के खुदा का इस्तकबाल करें और उस खुदा को हम उन लोगों तक भी पहुंचाएं, उसके पैदाइश की खुशखबरी, जिन्होंने कभी इस खुशखबरी को नहीं जाना। ये इनायत करे अपने बेटे हमारे दरमियानी अफिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Having heard the word of God, let us affirm our faith by reciting the Nicene Creed. परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आइए हम अपने ईमान का इजहार करें। निकाया का अकीदा हम मिलकर दोहराएंगे। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one indeed with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day He rose again. In fulfillment of the Scriptures, He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु जी, आपने हमें दिया प्रभु जी कि हम आज सुबह की आराधना में सहभागी हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस सहभागिता के द्वारा आशीष पाए प्रभु जी, और जिन लोगों के संपर्क में हम लोग आते हैं प्रभु जी, उन सबों के लिए भी हम आशीष का कारण हो प्रभु जी। प्रभु जी आजकल के समय के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जिस कठिनाई के समय से हम लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु जी होने दीजिए कि वो सब बातें जो प्रभु जी हम लोगों को एक दूसरे से अलग करती हैं, उनसे वो हमसे दूर हों प्रभु जी, और हम आपस में मेल मिलाप से रह सकें प्रभु जी, और एक दूसरे का सहारा बन सकें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सब टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रभु जी, जो इस नए शिक्षा के तरीके में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं प्रभु जी जो इस नई शिक्षा के तरीकों से अपने आप को दिक्कत में महसूस करते हैं प्रभु जी, जिनको सीखने में, उनको उसको इस्तेमाल करने में तकलीफ होती है प्रभु जी। उन्हें बुद्धि और ज्ञान की आशीषों से उनके परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, और उनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के अगुओं के लिए प्रभु जी, कि आप उन सबों को बुद्धि और ज्ञान की आशीष दिए प्रभु जी, कि वो अपने देश को, हम सबों को एक सही तरीके से, सही दिशा में लीड कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हमारे धर्म के अगुओं के साथ होइए प्रभु जी, उनके ऊपर अपनी बुद्धि और ज्ञान की आशीष होने लिए और होने दिए प्रभु जी, कि वो अपनी भेड़ों को
आपके वचन के अनुसार चला सकें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए प्रभु जी जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, अस्पतालों में, घरों में, अन्य जगहों पे जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रेवरेंड कर्नल लॉस मैसी के लिए जो समय अस्पताल में है प्रभु जी। प्रभु जी और उन सब लोगों के लिए प्रभु जी जिनके बारे में हम जानते हैं या नहीं भी जानते कि वो बीमार है प्रभु जी, उन्हें भी आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। और इस आशा के साथ लाते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें अपना शिफा बख्शेंगे प्रभु जी, उनके ऊपर अपना चंगाई का हाथ रखेंगे प्रभु जी। और हम सबों के साथ भी प्रभु जी, हम सबों को आप जानते हैं कि हम में से हर एक को किस किस को क्या कमी है, क्या घटी है प्रभु जी, उस सबको आप दूर कीजिए प्रभु जी। हमें चंगाई बख्शिए, हमें सेहत बख्शिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी कि हम पूर्ण से स्वस्थ होकर अपने जीवन और अपनी सेवाओं के द्वारा हर समय आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए प्रभु जी जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हैं प्रभु जी, जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग परिस्थितियों में अपने काम में लगे हुए हैं प्रभु जी, उन सबों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें संभालिए प्रभु जी, और उन्हें आप बचाइए प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर हम सब लोगों को, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को, इस विनती निवेदन को मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से, आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, कोई हमारा बल है। वह हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। है हमारे बाप हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। जलाल है हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा। आमीन। May the light of Christ, the Lord, shine in your hearts and minds, that you may see His glory. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest and abide with you now and forever. Amen.